کہ میاں طارق کے ساتھ ناظرین اکرام ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ آج جو ہمارا موضوع تھا اس سے تھوڑا سا ہٹ گیا ہے، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا اسٹیٹس کو کی بات کی ناز بلوچ صاحبہ نے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو اسٹیٹس کو کی عامل ہیں، اسٹیٹس کو چاہتی ہیں، وہ نہیں توڑنا چاہتی. تحریک انصاف واقعی جب آئی تھی نعرہ عمران خان کا جو تھا وہ یہی تھا کہ اسٹیٹس کو توڑیں گے، لیکن اس وقت جو لوگ ان کے ساتھ آ چکے ہیں وہ سارے کے سارے اسٹیٹس کو کہ وہ در پردہ جو ہے حامی ہیں، جو کبھی بھی شاید جو عمران خان کا ایک دعویٰ تھا یا اس دعوے کو ان کی نفی ہو گئی ہے. ناز کیا بتائیں گی، کیا کہیں گی اس بارے میں جو لوگ اسٹیٹس کو کے اتنے بڑے بڑے جو لوگ آئے اسٹیٹس کو والے جو پاور کے لیے دوبارہ میں آپ کو اس کا جواب دے رہی ہوں، میں آپ کو اس کا جواب بالکل دیتی ہوں. اس کا جواب پہلے تو یہ جو کنٹینیو کر رہے تھے وہ پہلے بتاؤں. پہلے میں ان سے سوال پوچھتی ہوں، یہ اسٹیٹس کو کی بات میں آپ سے کر رہی ہوں، وی آر ویری کلیئر آن دیٹ. پہلی بات میں ان سے یہ سوال پوچھتی ہوں، آج سے 4.5 سال پہلے صدر آصف علی زرداری نے ایک نعرہ لگایا تھا، قاتل لیگ قاتل لیگ، سب کو یاد ہے، ساری عوام گواہ ہے، یہ بھول گئے. جو اپنی محترمہ شہید کے ساتھ وفا نہ کر سکے وہ لوگ مجھ سے، آپ سے، عام عوام سے، عام پاکستانی سے کیا وفا کریں گے؟ قاتل لیگ کا نعرہ لگا کے آج اسی قاتل لیگ کو ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ دے دیا. تو آپ مجھے بتائیے ایسی کون سی پالیسی، محترمہ کا خط جس پہ انہوں نے خصوصی طور پہ مارک کیے ہوئے تھے ان لوگوں کو جن سے ان کو خطرہ لاحق تھا، آج یہ اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں. یہ عوام کو جواب دیا، 18 کروڑ عوام کو پہلے جواب چاہیے محترمہ کے خط. لیکن ان کی باری آئے گی تو یہ جواب مجھے دیں، ان کے پاس جواب نہیں ہے اس بات کا. نہیں تو آپ نے سب سے پہلے آگے تھی یاری کے ایشو میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے میں گئی ہوں وہاں پہ، اور میں نے وہاں پہ اتنا ریلیف کام کیا ہے، میرے ساتھ پوری ٹیم گئی ہے اور ہم سب جماعت میں موجود ہیں. آج بھی تحریک انصاف پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. پہلی بات تو یہ سوال ہے ان کے پاس فلیٹ آن دا فیس، دا کوسچن از کہ ان کے پاس قاتل لیگ کیا یہ تب صحیح تھے یا کیا یہ آپ صحیح تھے؟ اس کے بعد دوسری بات آپ آ جائیے کہ وہی بات انہوں نے اپنی محترمہ کے ساتھ وفا نہیں کیا، یہ عوام کے ساتھ کیا وفاداریاں نبھائیں گے؟ پھر آپ آ جائیں رینٹل پاور، فرنس آئل. جس ملک میں صدر اور وزیر اعظم بیٹھ کے بزنس کرے، اگر امریکہ میں اوباما بزنس کرنا شروع کر دے دنیا کا سب سے امیر ترین شخص وہ ہوگا. سوئس اکاؤنٹس کے لیے کیوں خط نہیں لکھتے؟ آج یہ خط نہیں لکھیں گے، اب اگلے وزیر اعظم جو انہوں نے بنا دیا تو یہ خط نہیں لکھیں گے. یہ وہی لوگوں کو لایا جا رہا ہے جو آلریڈی پارٹنرز ہیں. پارٹنرز کو جب آپ لے کر آتے ہیں، اور ویسے بھی آپ کو یہ محاورہ مشہور ہے نا، پارٹنرز ان کرائم جو ہوتا ہے تو وہ آپ کو بچاتا ہے، سیو کرتا ہے. تو اس طریقے سے نیچرلی یہ خط نہیں لکھیں گے کیونکہ ان کے اتنے تو رینٹل پاور کے اتنے بڑے چارجز ہیں. اور اس کے علاوہ جس ملک میں لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہ ہو رہی ہو وہاں پہ آپ فرنس آئل کے اوپر استعمال کر رہے ہیں الیکٹریسٹی. اسٹیٹس کو کی جو آپ بات کرتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف از دا اونلی پولیٹیکل پارٹی میں سمجھتی ہوں جس کے اندر میری بات سن لیجیے، اس میں جس طرح ہمارے پارٹی میں ابھی ممبرشپ کا 3 مہینے کا پروگرام ہوا اور اب یوسی لیول سے لے کے ٹاؤن لیول سے لے کے ہر سطح پہ ہماری پارٹی میں الیکشنز کیے جا رہے ہیں. اور الیکشنز کے بعد کہ آپ کی پارٹی میں خواتین ونگ کے یا کوئی اور عہدے بکتے بھی ہیں؟ کوئی عہدہ مجھے تو کبھی کوئی عہدہ نہیں بیکا. اچھا میں ان کی آپ بتا دیں. جی نہیں، ہم سارے میرٹ پہ آتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے میں اتنی قابلیت ہے، ہمارے میں ول ہے، ہمارے میں سچائی ہے، تبھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. دوسری بات آپ کو بتا رہی ہوں، لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ. آپ نے مجھ سے جو پہلی سوال پوچھی اسٹیٹس کو کہ آپ لوگ باتیں تب کریں، حکومت میں بیٹھے ہیں، عوام کا پیسہ آپ کھا رہے ہیں، آپ ہم سے سوال نہ پوچھیں، آپ ہم سے سوال نہ پوچھیں. آپ نے عوام کا پیسہ کھایا، ہم نے عوام کا پیسہ نہیں کھایا. آپ نے عوام کو بھوکا مار دیا. مشرف کے ریفرنس کی جو حمایت کی تھی
का एक्सेस भी किया है। आप इसी तरह से कि अपने बच्चों के ऊपर पर्दा डाल दें। एक चीज जो आपने पूछा है, उन्होंने सवाल किया है कि आपने जिस कातिल लीग को बीबी ने रिकमेंड किया था कि जी मेरे मरने में या मुझे अगर मार दिया गया या कुछ होगा तो ये लोग मुलव्विस होंगे, आपने उस कातिल लीग को गले कैसे लगाया? ये पार्टी नहीं है, वो पीपल्स पार्टी। मैं बताएं, आप अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करें, पीपल्स पार्टी के मालिक ना बने आप। अच्छा। और अल्लाह करे, मैं आपके लिए दुआ करूं कि अल्लाह करे आपको डॉक्टर हसन की तरह निकाल दे आगे जाके, जो इनकी पार्टी की जो पॉलिसी है। आप मेरी फिक्र ना करें, हमारी पार्टी में ये कहाँ की बात कर रहे हैं? के अंदर सियासत में तब्दीलियां आती है। कल के जो दुश्मन थे आज के आपके दोस्त बन जाते हैं। इमरान खान, कोई चीज मुझे पूरा तो करने दे ना। इमरान खान कल परवेज मुशर्रफ की हिमायत कर रहा था, ठीक है, आज उसका मुखालिफ बन गया है। यही शाह महमूद कुरैशी, बात सुने, यही शाह महमूद कुरैशी कल उसको सदर जज अच्छा लग रहा था, आज इमरान खान के पास है। यही खुर्शीद कसोरी साहब, उसको कल मुशर्रफ अच्छा लग रहा था, उसका जवाब दो। एक मिनट, मैं आपको बताऊं मियां साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो माइंड सेट है ना, वो कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं बेचारे, कोई गांव से कोई देहात से जो वोट करते हैं ना, इनकी जो साइकी होती है, ये जो आजकल जो पागल है, एक मिनट, पागल नहीं कह रहा हूं, इनकी जो साइकी होती है, मासूम लोग हैं। और देखें मैं आपको बताऊं, भुट्टो साहब से लेके बीबी शहीद तक इनके जो लोग थे यही कहते थे, भाई पीपल्स पार्टी कुछ नहीं उनको तो नारा मारो यार। रोटी कपड़ा और 4 साल के अरसे में मैं आपको लिस्ट देता हूं, हमने इनकम सपोर्ट के जरिए लोगों को दिया यार बाबा, ये उससे 18 करोड़ आवाम को क्या फायदा हुआ? आप लेकिन लोगों को नौकरी से क्या फायदा हुआ? अगर एक आदमी को अगर आप नौकरी देते आपने तो आपकी सोच है फिदा साहब, आपने 10,000 नौकरियां नहीं पीआईए में, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल, उसके बाद पीआईए का जो बेड़ा गर्क हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? कहां, किसने, क्या मतलब अरब रुपया था जब पीपल्स पार्टी की पीआईए का जो अब खरब से ज्यादा हो चुका है। मेरे भाई नौकरियां आपने दी, पैसे थे तब नौकरियां दी, जहाज आपने खरीदे कि पैसे थे तब खरीदे, वहां की पैसे थे तब पूरे किए ना। अच्छा, आपने कहा कि नौकरियां आपने मखसूस लोगों को दी है, अगर पीआई के अंदर 10,000 बंदे लगते हैं तो इट मींस 1 लाख फैमिली चला सकते हैं वो लोग। अगर हमने एनएचए के अंदर 7,000 लोग दिए हैं तो वो चला सकते हैं। नवाज शरीफ के दौर के अंदर जो सिंध के, बलोचिस्तान के और पंजाब के लोग निकाले गए थे, हमने रखे वो, उनसे आपने 1 लाख फैमिलियों के लिए जवाब देना चाहते हैं उनको। अच्छा, जहां तक सदर पाकिस्तान की बात है, प्राइम मिनिस्टर की बात है, ये हजम होने वाली बात नहीं है किसी से, ठीक है? एक दिन भी सबर मेहमान भी बैठे हो, मैं उनसे जरा जारी रहेगा। ये पाकिस्तान की सियासत है ही ऐसी कि इसमें इल्जामात प्रूव भी हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि जी हमारे खिलाफ साजिश हो गई और साजिश इतनी खतरनाक हुई है, मेरे सियासी मुखालफिन ने कर दी, ये कहकर हम अपनी जान छुड़वा लेते हैं। मैं इंजीनियर नवीद कमर साहब आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान ने भारत के साथ दोस्ती के बड़े दम भरते भरते ये किया कि भारतीय जासूसों को भी छोड़ना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि वो दहशतगर्द जिसने पाकिस्तान के कुछ 14 से 15 लोगों को बम धमाकों में शहीद किया था, उस दहशतगर्द को सुरभजीत सिंह को भी रिहाई का हुक्म दे दिया गया। उसकी जो फांसी की सजा थी वो कन्वर्ट की गई उम्र कैद में, और उम्र कैद के बाद उसको किया। लेकिन पीपल्स पार्टी, मैं इनकी तरफ भी बाद में आऊंगा, पीपल्स पार्टी ने कलाबाजी कही रात को 1:30 बजे और सुरभजीत सिंह की बजाय सुरजीत सिंह को रिहा करवा दिया। सुरजीत सिंह चला जाता है, वाघा बॉर्डर पे जाते ही वो कहता है कि जी मैं पाकिस्तान जासूसी करने गया था। हम अपने मुल्क की जासूसी करने वाले, इस मुल्क की तबाह करने वाले लोगों को फूलों के हाथ डालकर वापस भेज रहे हैं। क्या एक प्रोफेसर जो कि प्रोफेसर था वो जासूस नहीं था, उसको अगर किसी जाली मुकदमे में गिरफ्तार करके 20 साल रखा जाता है, उसको अगर रिहा कर दिया जाता है, क्या इन दोनों चीजों को कंपेयर करेंगे आप? जी देखिए, बात यह है कि इस वक्त तकरीबन 750 पाकिस्तानी इंडिया की कैद में है, जिसमें से 250 पाकिस्तानी वो हैं कि जिन पर कोई मुकदमा आज तक कायम नहीं हुआ और वो पिछले 10 साल से 15 साल से भारत की जेलों में सड़ रहे हैं। जितने कैदी
हिंदुस्तान से पाकिस्तान में रिहा होकर आए भी अगर चंद एक जो आए हैं, कोई नफसियाती मरीज था, कोई पागल हो चुका था, कोई मफलूज हो चुका था, कोई जिस्मानी तौर पर जो है उसके सारे आज़ा खत्म हो चुके हैं। भारतीय गति ने तो ये इतराफ किया कि पाकिस्तान में तशद्दुद नहीं होता, उसे जाके कहा ये कहा है, जबकि हमारा कोई भी ऐसा जितने कैदी आए हैं वो सारे के सारे एबनॉर्मल वहां से आए हैं। सही। अगर ये रिहाई करनी भी थी तो वो 750 पाकिस्तानी जो भारत की कैद में मौजूद हैं उनके साथ कोई सौदेबाजी होनी चाहिए थी, कोई सिलसिला होना चाहिए था। हम तो ये देख रहे हैं कि हम यहाँ से अमन का पैगाम भेजते हैं और वहां से लाशें आ रही हैं। अच्छा, एक चीज और, आज 350 और जो माइकीन है वो भी रिहा कर दिए गए। जी जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि भारत ने इसके साथ इतने सख्त इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिए, इतने सख्त इल्जाम जो है, अमेरिका को भी वो शायद दे रहा है कि जी अमेरिका भी इस तरह के इल्जाम लगाए और पाकिस्तान पर प्रेशर टैक्टिक्स जो है इस्तेमाल करे। क्या समझते हैं कि भारत के साथ हम दोस्ती का दम तो जरूर भरते हैं, क्या दोस्ती पर अपना इज्जत और वकार को दांव लगाकर हम दोस्ती करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए, बात यह है कि हमारी भारत के साथ, भारत ने पाकिस्तान को कभी तस्लीम ही नहीं किया। अभी हालिया वाकया पाकिस्तान कौंसिल का इस पर क्या मौका होगा? अभी हालिया जो मानसून का मौसम पाकिस्तान के अंदर बन रहा है, बारिशें होने वाली हैं, पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि आपके डैमों में कितना पानी मौजूद है, वहां की सूरत हाल क्या है, तो हिंदुस्तान ने वो डेटा देने से इनकार कर दिया कि हम आपको डेटा नहीं दे सकते। भारत ने कभी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया है। हम अपनी इज्जत और वकार की बुनियाद पर ना तजारत कर सकते हैं हिंदुस्तान के साथ, ना हम ये दोस्तियां लगा सकते हैं। शर्म भी ये सिलसिला नहीं है, अल्लाह ताला ने भी हमें मना किया है। हमारा बहुत बड़ा मसला कश्मीर का उनके साथ चल रहा है। हजारों लाखों मुसलमान हिंदुस्तान ने शहीद कर दिए हैं। हमारे डैमों पर उन्होंने दरियाओं पर डैम्स उन्होंने कायम कर लिए हैं और भारत ने हमेशा पाकिस्तान को बदनाम किया है आलमी सतह पर, हमेशा इल्जामात लगाए हैं, हमेशा पाकिस्तान। बलोचिस्तान के मसले पर देखें कि उनके हमेशा जासूस वहां पर पकड़े जाते हैं, दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, यहाँ पर ऐसी पकड़ा जाता है। खुद अफगानिस्तान से ऐसी रिपोर्टें मौजूद है कि वो बाकायदा पाकिस्तान पर अपने दहशतगर्दों के जरिए हमले करवा रहे हैं और इसमें पूरी तरह उसके 14 फौजी भी शहीद हो रहे हैं, सारा का सारा सिलसिला मौजूद है। तो हम ये समझते हैं कि हमें दोस्ती की बजाय भारत के साथ बैठना चाहिए, बराबरी की बुनियाद पे। हमारे डैमों, हमारे दरियाओं पर जो डैम बनाए इसके ऊपर बात होनी चाहिए, बल्कि दुनिया के आलमी जो मुआशी माहिरीन है वो ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हो सकता है कि इन पानियों की वजह से हिंदुस्तान से जंग लड़नी पड़े। ये 2015 तक पाकिस्तान जो डैम उन्होंने रोके हैं, जिस तरह के उन्होंने टनल्स बना के दरिया सिंध का पानी जिस तरह मूव किया है, उससे लगता है कि पाकिस्तान और इवन सिंध और पंजाब जो है ये बंजर हो जाएंगे, रेगिस्तान बन जाएंगे और भारत यकीनन हमारा दोस्त नहीं हो सकता। आप जितना मर्जी कोशिश करें। नाज़िम साहब, क्या मौक़िफ़ होगा आपकी पार्टी का, क्या करेंगे मुस्तकबिल में? अगर तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में भी आती है तो क्या भारत के साथ आप दोस्ती करेंगे, और दोस्ती करेंगे क्या उस पर इज्जत और अपना वकार दांव पर लगाकर दोस्ती करेंगे? देखिए तारिक, मैं आपको ये कहती हूँ कि हमारी माशाल्लाह हमारी डिजाइनर पॉलिसीज, हमारी जमात ने पॉलिसीज बनाई हुई हैं हर चीज के लिहाज से। हमारी जो लोकेशन है, ज्योग्राफिकली आइडियल लोकेशन है पाकिस्तान की। एक तरफ से हमारे पास ईरान आता है एंड देन थ्रू द कैस्पियन सी एंड एवरीथिंग हमारे पास ऑयल रिजर्व्स आते हैं। हमारे पास आगे बैक साइड चाइना, वी हैव सो मेनी। हमारे अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं। ये ड्रोन अटैक्स और इन चीजों की सबसे खिलाफ वर्जी हमने सबसे पहले अपनी आवाज बुलंद किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कि हम क्यों अमेरिका की जंग में हिस्सा बन रहे हैं। हम इस पोजीशन में नहीं हैं। हमारे अपने मुल्क के हालात ऐसे हमें इजाजत नहीं देते कि हम अमेरिका की इस तरह की गुलामी करें और ताबेदारी करें। और इंशाअल्लाह ताला और दूसरी बात है कि इंडिया से भी जहां तक ताल्लुकात है, जिस तरह से भाई ने अभी बात की कि हमारे अपने मुल्क का वकार और हमारी डिग्निटी ये सबसे प्राइम है हमारे लिए। पहले पाकिस्तान, फिर हमारे लिए कोई और। बाकी ये कि फ्रेंडली तरीके से आप आपस में नेबर्स में आपके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन होना एक अच्छी अलामत है, वो जाहिर बातें होनी चाहिए। लेकिन